Hello students, today will be discuss about theme या summary of Wardley Hall. Okay, a short summary of the novel. The novel Wardley Hall, written by Margaret Atwood, is the story of a woman. Her name is Rennie. She is the heroine of the novel, and she is a journalist by profession. She writes articles on travel, fashion, and lifestyle. There is no hero in the novel, though there comes three men in her life. They cannot be called the hero of the novel because with them she has only sexual relationship. There is no permanent relation between her and any other man. These three men are Jack, Dr. Daniel, and Paul. The first few chapters or parts of the novel are written in the background of Canada. But the major part of the novel is written in the background of Saint Anthony and Saint Agatha Islands. These are Caribbean islands. The heroine of the novel is young, fashionable, and beautiful, although the novel does not give any descriptions of her beauty. The man who came into contact with her praise her youth and beauty. Besides, she is intelligent and sexual. She has no objection in establishing physical relationship with the man of her choice. She does not repent it, rather she enjoys it. First of all, she comes into contact with her praise her youth and beauty. Besides, she is intelligent and sexual. First of all, she comes into contact with Jack, who is a colored man. Both of them live under one roof and frequently make love. Both of them know that their relationship is not permanent and there is no love between them. There is only physical attraction between them. Jack gives her full physical satisfaction that she requires most. Their relationship goes in her months. Then she comes to know that she suffers from cancer in her left breast. She gets worried, is always lost in her thought. She feels that her survival is almost impossible. The doctor advised her that he will operate surgery on her breast and a portion of her flesh will be cut off from her body. The doctor says that it is the only way to save her life. Finding no other way, she becomes ready for the operation, but now she is lost in the thought that after removing her breast, her beauty and attraction will be lost and it will be very difficult for her to live the rest of her life. When Jack comes to know that she suffers from cancer, he begins to maintain a distance from her. He does not get any erection when he tries to make love with her. Finally, he develops intimacy with another woman and goes away with her, leaving Rennie all alone. Rennie and Jack never meet again. He comes only in her imagination. She remembers him only for his extraordinary sexual power. मार्गरेट एटवुड द्वारा लिखित उपन्यास वॉर्डली हॉल एक महिला की कहानी है। उस महिला का नाम रैनी है और वह उपन्यास की नायिका है। व्यवसाय से वह एक पत्रकार है। फैशन, जीवन शैली, यात्राएं संबंधी लेख लिखती है।
उपन्यास में कोई भी नायक नहीं है। उसके जीवन में 3 पुरुष आते हैं, परंतु उसको उपन्यास का नायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके साथ मात्र शारीरिक संबंध होते हैं। उनके तथा रैनी के मध्य कोई प्रेम नहीं है। उपन्यास के प्रथम अध्याय कनाडा की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं तथा बाद के अधिकतर अध्याय सेंट एंटोनी सेंट अगाथे द्वीपों की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं। ये कैरेबियन द्वीप हैं। उपन्यास की नायिका युवा है, फैशनेबल है तथा सुंदर है। यद्यपि उपन्यासकार उसके सौंदर्य का कहीं वर्णन नहीं किया है, परंतु जिन व्यक्तियों के वह संपर्क में आई है वह उसके यौवन एवं सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। इसके अतिरिक्त वह योग्य एवं कामुक भी है। उसे अपनी पसंद के पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाने में कोई आपत्ति अथवा पछतावा नहीं है, वरन वह इसका पूर्ण आनंद लेती है। सर्वप्रथम वह जैक के संपर्क में आती है। जैक एक कलर्ड व्यक्ति है। जैक और रैनी एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं तथा यौन संबंध स्थापित करते हैं। दोनों ही इस बात को जानते हैं कि उनके संबंध स्थायी नहीं है, उनके मध्य कोई प्रेम नहीं है। उनके संबंध चलते रहते हैं। फिर रैनी को पता चलता है कि उसकी बाईं छाती में कैंसर हो गया है। वह चिंतित हो उठती है और हर समय इसी विचार में खो गई रहती है। उसे लगता है उसका जीवित रहना असंभव है। डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि उसकी शल्य क्रिया की जाएगी, उसका ब्रेस्ट काट कर अलग कर दिया जाएगा। वह बताते हैं उसको बचाने का एकमात्र यही उपाय है। मजबूर होकर वह ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है, परंतु अब हर समय इसी विचार से घिरी रहती है कि उसका स्तन कट जाने से उसका सौंदर्य और आकर्षण समाप्त हो जाएगा। वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। जैक को जब इस बात का पता चलता है तो रैनी को कैंसर है। वह उससे दूरी बनाने लगता है और अंततः वह एक महिला के साथ संबंध बना लेता है और रैनी को सदैव के लिए छोड़कर चला जाता है। रैनी की तरह जैक की बहन पुनः कभी नहीं होती है, वह मात्र उसकी कल्पना में आता है। रैनी का ऑपरेशन किया जाता है और ये ऑपरेशन करता है डॉक्टर डैनियल। डॉक्टर डैनियल उसे आश्वस्त करता है कि उसके शरीर का कम से कम अंग काटा जाएगा और बाकी बचा लिया जाएगा। वास्तव में उसको बचा लेता है, परंतु अब उसे हर समय अपने सौंदर्य की चिंता सताती है। डॉक्टर डैनियल उसको हर प्रकार से समझाता है, सांत्वना देता है कि परंतु वह ईश्वर से लोग उसे घूर कर देखेंगे। वह चाहती है इस प्रकार का जीवन जिए जिस उसकी ओर अधिक ना घूरा जाए, उसको एक सामान्य व्यक्ति समझा जाए। इसी मध्य वह डॉक्टर डैनियल से प्रेम करने लगती है। वह उसके प्रति कृतज्ञ है कि उसने उसका जीवन बचाया। रैनी उसके साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करती है, परंतु वह मात्र 2 या 3 बार से अधिक नहीं होता। इस कारण है कि डॉक्टर डैनियल कार्य के प्रति समर्पित है और विवाहित है। उसे इतनी फुर्सत नहीं है प्रेम के लिए समय निकाले। अपने प्रति डैनियल की उदासीनता को देखकर रैनी निराश हो जाती है। इसके अतिरिक्त डैनियल के साथ शारीरिक संपर्क में उसे संतुष्टि नहीं मिलती है जो उसको जैक के साथ प्राप्त होती थी। धीरे धीरे उनके संबंध खत्म हो जाते हैं। ओके, रैनी कनाडा में नहीं रहना चाहती है। वह किसी गर्म देश में किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहती है जहाँ उसकी निगाह में न रखा जाए, जहाँ वह लेखनी का अपना कार्य शांतिपूर्वक ढंग से कर सके। कोई इसको सेंट एंटोनी जाने की सलाह नहीं देता है जो कैरेबियन द्वीप है। वह सेंट एंटोनी आ जाती है। एंटोनी आते हुए हवाई जहाज में उसकी बहन डॉक्टर मिल्नोस से हो जाती है, जो सेंट एंटोनी में एक परिचित व्यक्ति है और भेड़ों की बीमारी का विशेषज्ञ है। सेंट एंटोनी आने पर वह होटल सनसेट में ठहरती है, जहाँ पर डोप का वैधानिक कारोबार करने वाली स्मगलरों, CIM, अन्य मध्यस्थों एवं राजनीतिकों का एक जाल बिछा है। रैनी इन लोगों को समझ नहीं पाती है, बड़ी सरलता से उनके जाल में फंस जाती है, क्योंकि वह व्यवसाय से एक पत्रकार है तथा किसी प्रकार की गतिविधि जासूसी में लिप्त नहीं है। उस नेटवर्क को समझ नहीं पाती और उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी हर बात पर निगाह रखी जा रही है। ओके, वहाँ उसकी बहन पॉल से होती है। दोनों की निगाह होटल के डाइनिंग हॉल में मिलती है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये परिचय मित्रता और संबंधों में परिवर्तित हो जाता है, परंतु संबंध ना तो स्थायित्व तो ना ही दोनों के मध्य कोई भी प्रेम है। पॉल उसे विभिन्न स्थान पर घुमाने के लिए जाता है। इसकी विभिन्न गतिविधियों से रैनी निष्कर्ष निकालती है कि वह CIA एजेंट है। यद्यपि वह अपने विषय में ये बताता है कि वह कनेक्शन हैं और वह सच भी है। वह विभिन्न अनैतिक व्यापार करने वालों तक गैर कानूनी धंधों में लिप्त लोगों के मध्य कनेक्शन का कार्य करता है।
उसके पास कुछ नावें हैं लेकिन जिनका प्रयोग वह मादक पदार्थ लाने तथा विदेशियों से हथियार मंगाने में करता है। इसी मध्य डॉक्टर मिन्नू उससे मिलने आता है, उसको बॉटनिकल गार्डन तथा कुछ अन्य स्थान दिखाने ले जाता है। मिन्नू उसको चेतावनी देता है कि वह पॉल के संपर्क में न रहे। वास्तव में पॉल एक राजनीतिज्ञ है जो चुनाव लड़ रहा है और बहुत से लोग उसके समर्थक में हैं। Rennie is put in the same prison cell in which Laura is imprisoned. Rennie hopes that as soon as the situation returns to normalcy and the officials come to know of her reality, she will be released. But this day never comes, and she remains imprisoned in the prison cell up to the close of the novel. होटल में ही रैनी की भेंट एक अन्य महिला लौरा से हो जाती है जो पॉल के संपर्क में है तथा ड्रग्स के व्यापार में फंसी हुई है। परंतु आरंभ में ना तो पॉल और ना ही लौरा से ये बताते कि वे दोनों एक दूसरे के निकट हैं। ये बात रैनी को बाद में पता चलती है। लौरा रैनी से कहती है सेंट अगाथे जो सेंट एंटोनी से लगा एक छोटा सा स्थान है, उसकी 80 वर्षीय दादी एल्वा बीमार है और उसकी देखभाल करने के लिए उसे आवश्यक रूप से जाना है। वह उसे कार्य यहाँ कर दे। एरोप्लेन से दिल की दवाइयों का एक बक्स एल्वा की बेटी न्यूयॉर्क से भेजा है, वह उसे वहाँ से ले आई। रैनी लौरा की बातों में आ जाते हुए बक्स एयरपोर्ट से लाकर अपने होटल के कमरे में रख देती है, परंतु उसकी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति उसके कमरे में प्रवेश करता है तथा उस बॉक्स को खोलकर देखता है। रैनी उस बक्स को खुला देखकर चकित हो जाती है। स्वयं भी उसे हाथ डालकर देखती है, उसमें दवाओं के अतिरिक्त बंदूक भी है। रैनी को जेल की उसी कोठरी में रखा जाता है जिसमें लौरा को रखा जाता है। उसको ये आशा है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और उसके विषय में अधिकारियों को वास्तविकता का पता चलेगा तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु वह दिन कभी नहीं आता और उपन्यास के अंत तक वह जेल में बंद रहती है।